So we can use heparin with deep venous thrombosis. We can use in pulmonary embolism. We can use heparin in prevention of venous thromboembolism in high-risk patients. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Dr. Abdul Qudoos. Students start करेंगे today's lecture on anticoagulant drugs. इस lecture में हम heparin को थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. Learning objectives की तरफ आते हैं. After this session of anticoagulant drug, you must be able to first define and classify anticoagulant drugs. Secondly, you must be able to describe the pharmacokinetics of heparin. Heparin is an anticoagulant. Third, you must be able to describe the mechanism of action of unfractionated heparin and low molecular weight heparins. And number last, 4, enlist the therapeutic indication, adverse effect, complication and contraindications of heparin. Okay, anticoagulant drugs. Can you please define the anticoagulant drugs, students? Yes. Anticoagulant basically a group of medicines is used to prevent the formation of blood clot or thrombosis and to keep the blood vessels open. Some of these drugs are parenteral, for example, heparin, and others are oral anticoagulants like warfarin. Warfarin is a prototype drug used as a oral anticoagulant drug. So anticoagulants basically are used for the prophylaxis or prevention, the treatment of thrombotic disorders such as stroke, maybe myocardial infarction, deep venous thrombosis or pulmonary embolism. Okay, about the classification of anticoagulant drugs. So we can divide or classify the anticoagulant into main 3 groups. The drug used in vivo or drug used in vitro. What does it mean in vivo and vitro? When we are using drug to inhibit the coagulation within the body, known as vivo, and then outside the body हम कहेंगे vitro. And कुछ drugs होती हैं जो both in vitro और vivo हम chemical use करते हैं to inhibit the coagulation or coagulatory process. Okay जी, start करेंगे drug use in vivo. The first group is parenteral anticoagulant drug और parenteral में the main group is indirect thrombin inhibitors जिसकी main drugs natural heparin और natural heparins को हम unfractured या standard regular heparins भी कहते हैं. Low molecular heparins भी हैं जिसमें enoxaparin is a prototype drug और last में अगर आप देखें pentasaccharides जो synthetic heparins हैं pentaperinexin. इसमें जो heparin है is a prototype drugs of indirect thrombin inhibitors जो parenterally हम use करते हैं as a anticoagulant. Second group direct thrombin inhibitors जिसमें herodine is a prototype drug जिसमें other lepirudine like drugs आती हैं. Okay जी, अब second group is anticoagulant orally. We can use oral anticoagulant drugs जिसमें main group is coumarin derivatives हैं और main prototype drug is warfarin. So warfarin we are using as a oral anticoagulant. Second group में indendione derivatives हैं जो basically rat poisoning के लिए use होते हैं. Clinically हम इसका use नहीं करते. Otherwise ये हमारे classification में रहेगा. Third में direct thrombin inhibitors. अभी हमने discuss किया direct thrombin lepirudine like drugs in parenteral, लेकिन अगर उसकी oral preparations हैं तो उसमें ज़मेलगेट्रॉन या डायबिगेट्रॉन एटैक्सिलेट ये वो ग्रुप हैं जो हम orally यूज़ करते हैं डायरेक्ट थ्रम्बिन इनिबिटर्स की. और लास्ट में नंबर 4 ओरल डायरेक्ट फैक्टर ए इनिबिटर्स में जिसमें रिवारोक्साबेन इज़ अ मेन प्रोटोटाइप ड्रग्स है और इसी को हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे. ओके स्टूडेंट, ग्रुप यूज्ड इन विट्रो ऑक्सलेट और सिट्रेट ऑफ सोडियम वी आर यूजिंग और ये कंपोनेंट है उन टेस्ट ट्यूब्स का कंटेनर्स वैक्यूम कंटेनर जहां हम
ब्लड ड्रॉ करते हैं और सेफ रखते हैं, उनको कोगुलेशन से रोकते हैं विद द साल्ट सिट्रेट ऑफ सोडियम लाइक। इसके साथ कुछ इस तरह की ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल जो बोथ इन विट्रो एंड विवो यूज़ होती हैं, जिसमें हेपरिन और हेपरिनाइज्ड सिरिंजेस होती हैं, जिसमें हम फॉर एग्जांपल आर्टेरियल ब्लड गैसेस कोई भी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकने के लिए समटाइम हेपरिन का यूज़ करते हैं जब हम सिरिंज में ब्लड लेते हैं। और साथ डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में हीरोडीन, इनका दोनों का इफेक्ट इन विट्रो बॉडी के अंदर बाहर और इन विवो बॉडी के अंदर रहता है। सो वी कैन क्लासीफाई द एंटीकोगुलेंट ड्रग्स पैरेंट्रल देन एंट्रल, ये इन विवो है। इन विट्रो में अगेन बाहर हम ऑक्सलेट्स या सिट्रेट या ETDA और हेपरिन जो विट्रो और विवो दोनों में यूज़ होती हैं, हम इसको क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं एज ए एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। ओके, अब आएंगे हेपरिन पे। व्हाट इज हेपरिन? यस, हेपरिन इज एन इनडायरेक्ट एंटीकोगुलेंट ड्रग्स that prevent the formation of blood clot. इसको indirect क्यों कहते हैं? Why they are so called indirect acting anticoagulant drugs? क्योंकि इसका इंट्रिंसिक कोई एक्टिविटी नहीं है डायरेक्ट इनहिबिट करने की थ्रम्बस फॉर्मेशन को या ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को, ये इनडायरेक्टली किसी की हेल्प से ये इफेक्ट अचीव करता है। ओके जी, हेपरिन्स, वी नो डैट हेपरिन्स वी हैव रेगुलर, स्टैंडर्ड और अनफ्रैक्चर्ड हेपरिन्स, जिसमें नेचुरल हेपरिन्स हैं द प्रोटोटाइप ड्रग्स। फिर इनका फ्रैक्शन है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स में, और इसमें फॉर एग्जांपल सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक में फंडापेरिनेक्सिन सोडियम है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ रेगुलर या अनफ्रैक्शन हेपरिन। अनफ्रैक्शन हेपरिन्स की क्या फार्माकोकाइनेटिक्स मीन? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू इंटरनल एंड देन इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जितने पैरामीटर्स हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ हेपरिन की इम्पॉर्टेंट फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये एब्जॉर्ब नहीं होती GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। क्यों? क्योंकि ये हाईली चार्ज मॉलिक्यूल हैं, लार्जर इन साइज, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इनका 15,000 to 30,000 डेल्टॉन है। सो वी आर गिविंग एज ए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनियसली और डीप सबकुटेनियस, नेवर यूज इंट्रामस्कुलर। क्यों? क्योंकि हमने अवॉइड करना है हेमाटोमा फॉर्मेशन। So onset of action immediate after intravenous route of drug administration, injections, and after subcutaneous इसका variable absorption है। onset of action 1 से 2 घंटे तक इसका हो जाता है। does not cross the placental barrier, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, placental barrier क्रॉस नहीं करता, और सेफर ड्रग है अगर हम प्रेगनेंसी में पेशेंट में यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी रिमूवल या एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म देखें तो हेपरिन इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड वाया 2 मैकेनिज्म, सैचुरेटेड एट लो डोजेस एंड नॉन सैचुरेटेड एट हायर डोजेस। अगर आपको स्टूडेंट्स कंसेप्ट है एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, आपने जनरल फार्माकोलॉजी में जो पैरामीटर्स थे एलिमिनेशन में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, जिसमें सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेशन ऑफ ड्रग्स थी। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो एलिमिनेशन होती है वहाँ एक फिक्स्ड अमाउंट एलिमिनेट होती है और सैचुरेट करती है ड्रग, बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। द सेम सेंस अगर यहाँ हम लो डोज देते हैं हेपरिन की तो वो सैचुरेट कर जाती है बॉडी के अंदर, और जो नॉन सैचुरेबल है वो हाई डोजेस में हाई अमाउंट आप देंगे तो हाई अमाउंट एक्सक्रीट आउट होगी बॉडी से। अगर हम देखें सैचुरेबल मैकेनिज्म है क्या, रिप्रेजेंट क्लियरेंस by the reticular endothelial cell system, for example monocytes or macrophages system, endothelial cells and liver, यहाँ से इसकी
क्लियर होती है और ये जो क्लियरेंस है वो सैचुरेटेड है। ऑन द अदर हैंड नॉन सैचुरेटेड मैकेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय द रीनल एक्सक्रीशन, ना कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स के सिस्टम के थ्रू से होती है। इसमें आप देखें फॉर एग्जांपल 25 यूनिट ऑफ हेपरिन क्लियर्ड इन 30 मिनट्स वाइल द 100 यूनिट 1 घंटे में और 400 यूनिट 400 यूनिट्स जस्ट इन 150 मिनट्स। और यहाँ हमने देखा हेपरिन की सैचुरेशन नहीं होती इन हाई डोजेस में, और अमूमन इसकी जो एक्सक्रीशन है थ्रू रीनल है, रीनल वे से, किडनी से। जी, तो प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ हेपरिन इज़ अबाउट 1.5 आवर, 1.5 घंटा इसकी हाफ लाइफ है, शॉर्ट हाफ लाइफ। और ये हाफ लाइफ इसकी शॉर्टन होती है इन पेशेंट विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड प्रोलॉन्ग इन पेशेंट विद हेपेटिक सिरोसिस, क्रोनिक हेपेटिक फेलियर या एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर के एंड स्टेज में। ओके स्टूडेंट्स, अब आएंगे important pharmacokinetic parameters of low molecular weight heparin की तरफ। These are the fractions or fragment of heparin. 1/3 the size of unfractionated heparins produced by the chemical processing or enzymatic depolymerization of the unfractionated heparin. Molecular weight देखें वो 15,000 to 30,000 हेपरिन का था, ये 1/3 साइज ऑलमोस्ट 2,000 to 6,000 ऑफ डेल्टॉन है गिवन सबकुटेनियस। अगर इसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखें, एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेबिलिटी रीच इन अनचेंज प्रेजेंस इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बायोअवेबिलिटी ग्रेटर एज कंपेयर टू अनफ्रैक्शन हेपरिन एंड मोर प्रिडिक्टेबल इसका एक्शन है। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एज कंपेयर टू अनफ्रैक्शन हेपरिन। प्लाज्मा हाफ लाइफ उसकी 1.5, इसकी 3 to 7 आवर्स है। सो लेस फ्रीक्वेंटली इसकी जो डोजेज है एडमिनिस्ट्रेशन, हम 1 to 2 times a day इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। Mechanism of heparin's action is very important. It is an indirect thrombin inhibitor. Student, what does it mean? Indirect thrombin inhibitors. Basically, heparin intrinsically capable नहीं है to directly inhibit the thrombin formation. Direct वो thrombosis को inhibit नहीं करता, इसको ज़रूरत पड़ती है किसी और chemical की। So, the activity of heparin is totally dependent upon the endogenous anticoagulant protein known as antithrombin factor 3 and alpha globulin, which normally inhibit the clotting factor, especially factor 2 or factor 10. Heparin basically bind करती है very tightly to the antithrombin factor 3 and causes a conformational change, exposes active site. Or normally antithrombin factor 3 irreversibly inactivate thrombin factor 2 and factor 10 to prevent the excess bleeding or excess clotting in normal environment में thrombus की overproduction को inhibit करती है। So antithrombin factor 3 interact very slowly with clotting factor, but in the presence of heparin, जब heparin के साथ heparin antithrombin factor 3 के साथ attach होती है, conformational change लेके आती है, the interaction with the thrombin factor 2 and factor 8 is accelerated 1,000 folds. So increase the anticoagulation due to irreversible inactivation of thrombin and other factors including particularly factor 10. Also, after the catalyzing or reaction with the antithrombin protease reaction, इसके इफेक्ट हेपरिन रिलीज होती है और इंटैक्ट करती है न्यू बाइंडिंग में नई एंटीथ्रम्बिन फैक्टर 3 के साथ और एक प्रोटीन को एक्टिव करके वो जो इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है थ्रम्बिन फैक्टर 2 और 10 को, उसके बाद वो रिलीज़ होती है, नए एंटीथ्रम्बिन को ज्वाइन करती है, उसको एक्टिवेट करती है। तो हेपरिन बेसिकली इट इज़ ए ट्रू कैटलिस्ट। जी स्टूडेंट, यही मैकेनिज़्म जो आप अभी
पाथवे देख रहे हैं, कागुलेटरी पाथवे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, जो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। इनमें जो एंड रिजल्ट है सॉल्युबल फिब्रिनोजिन जो ट्रांसफॉर्म होता है इनसॉल्युबल फिब्रिन स्ट्रैंड में, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है नॉर्मली फैक्टर एंटीथ्रम्बिन फैक्टर 3। तो डिफरेंट फैक्टर्स को, स्पेशली फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को ये कैपेबल होता है ब्लॉक करने में। हेपरिन क्या है? हेपरिन अटैच होता है इसी फैक्टर के साथ एंटीथ्रम्बिन फैक्टर 3 और इसको 1000 फोल्ड मोर एक्सेलरेट करता है, मोर एक्टिवली इसको एक्टिव करता है और ये अपना इफेक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट अचीव करता है। द मेन एक्शन, द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन टू एक्टिवेट द एंटीथ्रम्बिन फैक्टर 3 to stop the further activation of factor 2 and factor 8 particularly. Okay student, mechanism of low molecular weight heparins as compared to unfractionated heparin. Low molecular heparin increase the activity of anticoagulant antithrombin factor on factor 10A specifically, but not on the thrombin factor 2. Why? Because they are smaller and cannot bind the both factor 10A and thrombin simultaneously. Size छोटा है तो वो capable है only block the action of antithrombin on antithrombin 3 on factor 10A but not factor 2. अगर हम डायग्राम पे देखें तो antithrombin factor 3 or heparin, unfractionated heparin can able to bind not only the thrombin 2, factor 2A, heparin also capable to bind or stop the action on 10A. On the other hand, due to its low molecular weight heparin can able to stop only factor 10A. इसका इफेक्ट थ्रम्बिन फैक्टर 2 पे नहीं होता। एक और डायग्राम में आप देखें, डिफरेंट एंटीथ्रम्बिन फैक्टर इनएक्टिव है आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ हेपरिन या लो मॉलिक्यूलर या अनफ्रैक्शन हेपरिन, जिसकी जो एक्टिविटी है 1000 टाइम फोल्ड इंक्रीज करती है टू स्टॉप द एक्शन ऑफ 10A एंड थ्रम्बिन फैक्टर 2 को। लेकिन हाई अनफ्रैक्शन, हाई large molecular size can able to stop the action of 10A and thrombin. On the other hand, short low molecular weight heparins can able to stop only factor 10 activity. इसका effect thrombin 2 पे नहीं होता। ये थोड़ा इसका action different है with unfraction हेपरिन के साथ के लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन सेलेक्टिवली, क्योंकि कैपेबल नहीं है, साइज छोटा है, तो एबल टू ब्लॉक द इफेक्ट एंटीथ्रम्बिन ओनली ऑन फैक्टर 10 बट नॉट ऑन फैक्टर 2 और थ्रम्बिन। ओके स्टूडेंट, कंपैरिजन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अनफ्रैक्शन हेपरिन्स एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इन द प्लेटलेट रिच थ्रम्बी। क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन क्या है जी? We know that a positively charged protein known as platelet factor 4 is released during the platelet activation. और ये जो factors हैं binds करते हैं to the heparin and prevent it from the interacting with the antithrombin. थ्रम्बिन के साथ इनके heparin के interaction को inhibit करता है factor 4. This phenomenon may limit the activity of heparin in the vicinity of platelet-rich thrombi. जो platelet-rich thrombi है, इसमें heparin की activity को कम करता है due to the interaction between the heparin and antithrombin factor 3. ये जो platelet factor 4 है। ऑन द अदर हैंड, ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है और ये जो सिंथेटिक फॉर्म फॉर एग्जांपल फंडा पेरिनैक्सिम हेपरिन है, हैव लो एफिनिटी फॉर दिस प्रोटीन प्लेटलेट फैक्टर 4. So these agents may retain their activity in the vicinity such thrombi so greater extent than heparin. तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स की जो एक्टिविटी है प्लेटलेट रिच थ्रम्बिन में मोर sufficient है, more active as compared to
अनफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन है, प्लेटलेट फैक्टर 4 इंटरैक्ट करता है इन बिटवीन द हेपरीन और एंटीथ्रम्बिन 3 जो प्रोटीन हैं इनके साथ। ओके जी, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ हेपरीन। Heparin is used as an anticoagulant for immediate or short-term effect, generally given along with the oral anticoagulant drugs like warfarin. Heparin is stopped after the 4 to 5 days and oral anticoagulant drug continue अगर तो ज़रूरत है पेशेंट को prolonged duration के लिए। So we can use heparin with deep venous thrombosis में, we can use in pulmonary embolism, we can use heparin in prevention of venous thromboembolism in high risk patient, that is orthopedic surgery. Orthopedic surgery में more frequently thromboembolism like events होते हैं, उसकी prevention के लिए sometime we are using heparin. Heparin we can use for the anticoagulant during pregnancy, puerperium period में the drug of choice, क्योंकि heparin safer drug है in pregnancy. Heparin should be stopped 24 hours before the delivery to decrease the risk of postpartum bleeding. इसके साथ हेपरीन हम दे सकते हैं इन द इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। वी कैन यूज़ आफ्टर द कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, वी कैन यूज़ इन कोरोनरी बाईपास सर्जरी कैबेज में विथ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी to maintain the patency of cannula and shunt in dialysis patient. Sometime dialysis patient में shunt बनाया जाता है vein को artery के साथ, और यहाँ क्योंकि थ्रम्बस फॉर्मेशन के ज़्यादा चांसेस हैं तो हम उनको ओवरकम करने के लिए समटाइम यूज़ करते हैं हेपरीन को। लास्ट में टू प्रिवेंट द ब्लड इन विट्रो। मॉनिटरिंग ऑफ द हेपरीन इफेक्ट 6 hours आफ्टर द ट्रीटमेंट। हेपरीन को हम मॉनिटर करते हैं क्योंकि हेपरीन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जो हम ने इसको मॉनिटर करना है इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन को। सो अनफ्रैक्शन हेपरीन पेशेंट हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर द मॉनिटरिंग। जब तक आप हेपरीन देते हो पेशेंट को एडमिट रखते हैं। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT, it maintained 2 to 2.5 times the control value. Secondly, we use level of unfractionated heparin may also be determined by the protamine titration, जिसकी 0.2 to 0.4 यूनिट पर ml नॉर्मल वैल्यू है। और लास्ट में हम देखें इसको anti-10 फैक्टर A यूनिट से हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0.3 यूनिट पर ml टू 0.7 यूनिट पर ml है। लो मॉलिक्यूलर वेट सेफर ड्रग है एज कंपेयर टू अनफ्रैक्शन। सो एंटी जो फैक्टर 10A है यूनिट, हम इसको मॉनिटर करते हैं इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर। सो पेशेंट कैन बी मॉनिटर इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, OPD घर भेज देते हैं तो फिर भी सेफर ड्रग है, हम बाद में भी पेशेंट का मॉनिटर कर सकते हैं नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन। और जो अनफ्रैक्शन हेपरीन है उसके चांसेस ज़्यादा ब्लीडिंग के हो सकते हैं, तो फिर हम अमूमन उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को जब तक ये थेरेपी चल रही होती है। एडवर्स इफेक्ट्स डेफिनेटली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेमरेज द मेन एडवर्स इफेक्ट, वेरी डेंजरस एडवर्स इफेक्ट अगर तो आपकी टॉक्सिक डोज या इसकी टॉक्सिक डोज चली गई है पेशेंट में। The most common and important adverse effects, so the close monitoring is required. Bleeding from the nose, epistaxis, gum, बॉडी के किसी हिस्से से भी ब्लीडिंग आना शुरू हो सकती है विद द यूज़ ऑफ हेपरीन। जो क्लोजली मॉनिटर करना है पेशेंट को और उसकी नॉर्मल मॉनिटरिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन को आपने चेक करना है। अगर एडवर्स इफेक्ट आते हैं ब्लीडिंग के तो क्या करेंगे जी स्टूडेंट? सो स्टॉप द हेपरीन, गिव एंटीडोट ऑफ हेपरीन मीन्स प्रोटामीन सल्फेट, एक्ट बाय द केमिकल एंटागोनिस्ट। ये केमिकली अल्ट्रेशन करता है, चेंज करता है द एक्टिविटी ऑफ हेपरीन।
फॉर एग्जांपल प्रोटामीन सल्फेट इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज मालिक्यूल जो कंबाइन करता है यूनिकली विथ हेपरीन और हेपरीन की एक्टिविटी को डिसॉल्व करता है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज एंड इट्स फॉर्म स्टेबल 1:1 इन एक्टिव कॉम्प्लेक्स। नोट करने की बात यह है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डोजेज ऑफ प्रोटामीन, आपने प्रोटामीन सल्फेट को केयरफुली देना है। ये जो इसकी डोज है 1 मिलीग्राम ऑफ इंट्रावेनस प्रोटामीन कैन न्यूट्रलाइज द 100 यूनिट ऑफ हेपरीन। एक्सेस ऑफ प्रोटामीन सल्फेट अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं तो ये वीक एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और आपकी ब्लीडिंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकता है। सो हम इसकी टाइट्रेशन को कंट्रोल रखते हैं। 1 मिलीग्राम ऑफ इंट्रावेनस प्रोटामीन सल्फेट कैन न्यूट्रलाइज द 100 यूनिट ऑफ हेपरीन। कीप इन माइंड। Okay जी, the second adverse effect, very important, heparin induced thrombocytopenia, HIT, 1 to 4%. बेसिकली हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दो तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो नॉन इम्यून है और विद इन फर्स्ट 5 डेज़ में आ जाता है और इतना सीरियस इन्फेक्शन, इतना रिएक्शन नहीं है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2। सेकेंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, HIT, 1 to 4% इंडिविजुअल्स में ये रिएक्शन हो सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 नॉन इम्यूनोलॉजिकल है और ये विद इन 5 डेज़, फर्स्ट 5 डेज़ में हो सकता है और इतना सीरियस रिएक्शंस नहीं होते एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 जो रेयर है और बिटवीन 5 to 14 डेज़ के अंदर आते हैं और ये सीवियर इन नेचर होते हैं। क्या होता है इनमें? प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटेड रिएक्शन विथ हेपरीन विथ प्लेटलेट फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स। प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है, रिलीज द प्लेटलेट contents may produce thrombosis and thrombocytopenia. Very dangerous or very bad type of reaction है। may produce थ्रोम्बोसिस भी करता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है। प्लेटलेट काउंट 50% डिक्रीज़ हो जाते हैं इस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में, थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन में आकर। और अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो फ़ौरन आपने स्टॉप करनी है हेपरीन को। और अगर फ्यूचर में पेशेंट को जिसको एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक इफेक्ट आते हैं तो हम कंट्राइंडिकेटेड है हेपरीन उन इंडिविजुअल्स के लिए और हम उसके अल्टरनेटिव फिर हम डायरेक्ट एक्टिंग लेप्यूरिडीन लाइक जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स हैं यूज़ करते हैं। थर्ड एडवर्स इफेक्ट एलर्जिक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल माइल्ड रिएक्शंस होते हैं, अर्टिकेरिया, अस्थमा, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है विद द यूज़ ऑफ हेपरीन। ऑस्टियोप्रोसिस लीडिंग टू स्पॉटेनियस फ्रैक्चर, अगर क्रोनिक यूज़र है, अगर ज़्यादा देर तक अगर पेशेंट को हेपरीन दी जाती है और साथ ही वो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स डेफिशिएंसी कॉज करता है, अगेन प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ हेपरीन, ट्रांजिएंट एलोपेशिया, लॉस ऑफ हेयर and other adverse effect of heparin. ओके जी, रिवर्सल ऑफ हेपरीन, अनफ्रैक्शन हेपरीन में इसका जो मेन रिवर्सल है, हम स्टॉप करते हैं हेपरीन को, गिव प्रोटामीन सल्फेट एक्ट बाय द केमिकल एंटागोनिस्ट, लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट में इसकी जो एक्टिविटी है वो इनकम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होती है। 1 मिलीग्राम ऑफ प्रोटामीन सल्फेट हम इंट्रावेनस देते हैं फॉर 1 मिलीग्राम ऑफ इनॉक्साप्रीन जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरीन है। अगर हम ज़्यादा देते हैं तो इनका अगेन एंटी कोगुलेंट इफेक्ट आता है और ये मज़ीद ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन ऑफ हेपरीन, जी स्टूडेंट्स, पेशेंट जिसके साथ हेपरीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक लाइक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आते हैं, हमने बिल्कुल उन इंडिविजुअल्स को हेपरीन नहीं देना, हम उनको डायरेक्ट एक्टिंग लेप्यूरिडीन लाइक ड्रग एडवाइस करते हैं। सेकंड, एक्टिव ब्लीडिंग, जो पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, हीमोफिलिक पेशेंट है, हीमोफीलिया के साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या पुरपुरा
ये जो पेशेंट हैं इनको हम हेपरिन यूज़ नहीं करते। सीवियर हाइपरटेंशन में या इंट्राक्रेनियल हैमरेज में हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते और कंट्राइंडिकेटेड है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में और वेरी एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में या फिर अल्सरेटिव लीजन है जहां ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं जीआई ब्लीड करने के, हम पेशेंट को एडवाइस नहीं करते और थ्रेटन एबॉर्शन में। ये कंट्राइंडिकेशन है यूज़ ऑफ हेपरिन। इसके साथ विसरल कार्सिनोमास, एडवांस हेपेटिक रीनल डिजीज़ में, रीसेंट ऑपरेशन ऑफ आई, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। पेशेंट अंडरगोइंग लंबर पंक्चर्स और रीजनल एनेस्थेटिक ब्लॉक में हम पेशेंट को नहीं करते। वेरी कॉन्शियसली यूज़ है हेपरिन का उन इंडिविजुअल्स में जो पहले से एस्पिरिन या एंटीप्लेटलेट ड्रग पे हैं, और प्रेगनेंसी में भी पेशेंट को अगर एब्सोलूट इंडिकेशन है तो हम रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज़ वेरी कॉन्शियसली हम हेपरिन को यूज़ करते हैं इन प्रेगनेंसी अगर पेशेंट को ज़रूरत है हेपरिन की। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकागुलेंट ड्रग्स और फिर हमने डिटेल के साथ हेपरिन को डिस्कस किया, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट एंड कंट्राइंडिकेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, लेप्यूरिडीन और वारफरिन ओरल एंटीकागुलेंट ड्रग को डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।